At this outset, I would like to welcome all the dignitaries from industries and our iHub team for this fourth special session on Startup Engage program. हम लोग ने ये स्टार्टअप एंगेज प्रोग्राम चेयरपर्सन iHub मैडम अंजू शर्मा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन के इंस्पिरेशन से 4 सैटरडे से कर रहे हैं। और ये हर सैटरडे को सुबह हम लोग आप सबसे बात करते हैं, जितने भी इनोवेटर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, ताकि आपके साथ iHub टीम की और एक्सपर्ट्स की इकोसिस्टम की डायरेक्टली इंटरफेस बन सके। तो आज फोर्थ सेशन है और आज हमारे पास 3 इंडस्ट्री स्टालवर्ड्स हैं, भरत भाई, प्रवीण भाई एंड नारायण भाई। मैं सबको ऑन बिहाफ ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, गुजरात स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन हब एंड एंटायर स्टूडेंट इनोवेशन एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम की तरफ से वेलकम करता हूं। और जो लोग आज फेसबुक लाइव के माध्यम से हजारों संख्या में स्टूडेंट्स, इनोवेटर्स, स्टार्टअप सुन रहे हैं, उन सबको भी मैं वेलकम करता हूं टू दिस स्पेशल सेशन। I would like to introduce our team and also the dignitaries today. We are privileged to have Madam Anju Sharma, the chairperson of iHub and principal secretary of higher and technical education, today with us. We have with us the Professor Himanshu Pandya, Vice Chancellor Gujarat University and Chief Mentor iHub. We also have Praveen Bhai Patel, the chairman of HOF Furniture System Limited. He has made from ground to a global corporation by now. He will share his story. We have Mr. Bharat Bhai Hapani from Keech Architectural Products. He's an amazing human being and a celebrated entrepreneur. He will share his story and insights and also answer your questions to all of innovators and startup today. We also have Arun Bhai Patel, the senior partner of Sartex Engineering. He himself, I was told, he himself has mentored more than 30 entrepreneurs in the Kutch region. Yesterday, when we talked to him and he interacted with us, he told that he will be happy to extend those kind of support to any of innovators and entrepreneurs who come to iHub. So welcome you, sir, all of you, for joining us today on this special session, the Startup Engage program. गुजरात स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन हब के माध्यम से आज हम लोग आपकी लर्निंग को, आपकी इनसाइट्स को सबके पास रखना चाहते हैं। Having said that, I would now like to welcome Dr. Himanshu Pandya, our Chief Mentor iHub, to share his initial comment. Good morning, namaskar. This is indeed a pleasure of Startup Engage, where we are inviting young entrepreneurs and successful enterprises to our campus. In the age of Corona, this pandemic, we are arranging this where we are engaging young This is very essential because as a human, we learn enterprise from Gujarat and across the globe. They have establishment across the globe. We have Mr. Arun Patel, Mr. Bharat Hapani, and Mr. Praveen Patel. One thing I want to share, like I told you, being a human, we are learning from each other. But we hardly keep these lessons with us. This is really very important. हम जहां भी जाएंगे, अगर हम किसी से सीखा है या किसी को समझा है, उसको अपने बिहेवियर में नहीं लाएंगे, तब तक आपके जो भी कार्य है उसमें वो सिंसियरिटी नहीं आएगी. I firmly believe that if you have some inspiration, we should not hesitate mentioning those inspiration. हम स्टार्टअप के लिए आज के युवाओं को सब कुछ त्वरित चाहिए, अभी के अभी चाहिए और विथ लेस एफर्ट्स चाहिए. हमने ये 4th वीक है जब हमने अलग अलग सेक्टर से एक्सपर्ट्स को यहाँ पे बुलाया है, उनसे गाइडेंस मांगा है और उनको रिक्वेस्ट की है कि आप अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी सक्सेस स्टोरीज हमारे स्टार्टअप के साथ शेयर कीजिए. इससे ये होता है, किसी को कंपनी एस्टैब्लिशमेंट करने में प्रॉब्लम है, किसी को अपनी प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट करने में प्रॉब्लम है, किसी को हाउ टू मार्केट माय प्रोडक्ट, हाउ टू इवॉल्व विथ माय प्रोटोटाइप, ये सारी चीजें होती है दिमाग में. हाउ टू प्रोटेक्ट माय ओन आईटीआर, ये अभी सब नए फंडे हैं जो बिजनेस में ऐड हो चुके हैं.
हम ऐसे ऐसे एंटरप्राइजेस से मिल रहे हैं जो कि पुराने भी हैं, जिनको ये सब चीजें नहीं करनी पड़ी थी। उस टाइम मार्केट का तरीका कुछ और था। और आज की डेट में जो नए एंटरप्रेन्योर्स है, जो अपना सक्सेसफुल बिजनेस चला रहे हैं, एंड इट्स अ मल्टी मिलियन डॉलर एंटरप्राइज, वो कोई ऐसे ही नहीं हो जाता। उसके पीछे एक बहुत बड़ी लगन, एक बहुत बड़ा प्लानिंग होता है। तो मैं आज के युवा स्टार्टअप से ये प्रार्थना करूंगा कि आप चीजों को बारीकी से समझिए, अपनी सोच को पब्लिक की रिक्वायरमेंट और इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेवलप कीजिए। वहां पे इतने सारे अपॉर्चुनिटीज है कि आपको किसी को नौकरी मांगने की जरूरत नहीं है, आप लाखों लोगों को नौकरी दे सकते हो। हमें बहुत पीड़ा होती है जब आज का युवा डॉक्टरेट करके या फिर मास्टर डिग्री प्रोग्राम करके 25,000 या 30,000 की जॉब के लिए अप्लाई करता है। उसके अंदर बहुत पोटेंशियल है, पर उसको एक मुझे खुशी है कि गवर्नमेंट ऑफ गुजरात में ये आई हब, बहुत सारे युवा एक प्लेटफॉर्म पे आके उनकी सारी कठिनाइयां यहाँ पे शेयर कर सकते हैं और हम उनको उनके अनुरूप रास्ता दिखाएंगे। ऑफ कोर्स उनमें एक बहुत बड़ा एफर्ट लगता है जिसमें बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। हम धन्यवाद करना चाहेंगे हमारी शर्मा, हर हफ्ते इसी समय स्टार्टअप से बातें करते हैं, उनको सॉल्यूशन देते हैं। आई हब की पूरी टीम, जिसके सीईओ हिरण्मय महंता है, he is very energetic and he is always there to help you out. Please do not hesitate to come to us, to write to us, and to meet us. In today's session, we would have 3 different industries with us. They will share their experiences, how they developed their business, what were the challenges. I would request Hiranmay to coordinate the session now, from now onwards. Thank you very much for being with us. Thank you. थैंक यू सो मच सर। आपकी मार्गदर्शन में हम लोग पिछले 2 मंथ्स में काफी सारे फ्लैगशिप प्रोग्राम्स को इनिशिएटिव्स किए हैं जो स्टार्टअप्स के लिए काफी सुविधा भी दिया है। मैं प्रवीण भाई को अनुरोध करूंगा, प्रवीण जी आपकी एक्सपीरियंस, आपकी इंसाइट, जैसे हमने कल स्टार्टअप्स की सवाल आपको बताया है, क्या सीख सकते हैं, क्या आपकी एक्सपीरियंसेस रहा है। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट प्रवीण भाई टू स्टार्ट हिज आंसर। हिमांशु भाई नमस्कार, अंजू मैडम नमस्कार, ऑल ऑफ यू, ऑल यंग एंटरप्रेन्योर। आज जो 32 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आपसे शेयर करना चाहूंगा कि 86 में हम लोग भी एंटरप्रेन्योर थे और इतनी असमझ से हम मार्केट में जब घुसे थे तो बहुत सारी कठिनाइयां हमारे सामने थी। लेकिन दोस्तों मैं ये बताना चाहूंगा कि क्या 86 में 2.5 लाख रुपया जेब में लेके धंधा करने का सोच हमारे को जो आया वो आज यहां तक पहुंचा है। वो इतना हार्ड जर्नी था, लेकिन कुछ ऐसी रोड मैप बनाई थी हमने कि वो रोड मैप पे चलने से यहाँ तक हम डेस्टिनेशन तक पहुंच गए। तो दोस्तों ये कहना चाहूंगा कि आपके पास कितना भी पैसा है लेकिन आप सक्सेस हो सकते हैं वो फिक्स नहीं है। लेकिन आपकी जो सोच क्या है, यदि आपकी सोच सही होगी तो आपको सक्सेस मिलेगा। वॉल्यूम कम तो पहली चीज ये है, मैं हर एंटरप्रेन्योर को यही बोलूंगा कि आपके पास सही सोच होनी चाहिए। आपको क्या करना है, यदि आप सही सोच करके सही बिजनेस में आप एंटर होते हैं तो उसकी सोच को पकड़ के आपको कंटिन्यूस इसके अंदर ही काम करना पड़ेगा, जब आपको सक्सेस मिलेगी। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं कि बिजनेस को जब चूज करते हैं उसके बाद उसको आगे जाते जाते जब कठिनाइयां बढ़ती है तब उसकी सोच में चेंज आता है कि यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है, इसमें हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो कई लोग क्या है आधे से छोड़ देते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आपके अंदर आपके आत्मविश्वास को पकड़ के चलना पड़ेगा, आपकी सोच को पकड़ के चलना पड़ेगा और कॉन्फिडेंस से आपको 1000 डे को क्रॉस करना है। 1000 दिन जब क्रॉस करेंगे तब आप पूरी मार्केट को, स्ट्रेटेजी को, हर चीज को आप जान लेंगे।
और यदि आपने जान लिया फिर आपके लिए आसान हो जाता है। तो जब हम लोगों ने बिजनेस शुरू किया तो काफी कठिनाइयां थी, जिसमें कि फाइनेंस भी आता है, मार्केट भी आता है, ऑपरेशन आता है, फिर मैन पावर का भी प्रॉब्लम्स आता है। ये सब चीजें साथ में जुड़ के आती है, सक्सेस के साथ ये सब चीजें जुड़ी हुई है। लेकिन आपको इसके अंदर से रास्ता निकालना पड़ना है, डरना नहीं है। तो मेन चीज ये है कि आपको पहले आपका रोड मैप बनाना है कि आपको कहां पहुंचना है, और वो पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा वो पहले आपको फिक्स करना है। यदि आपने इसको फिक्स कर दिया, उसके बाद उसके ऊपर आप चलते रहो, वही रास्ते पे चलते रहो, सक्सेस आपको ऑटोमेटिकली मिलेगा। दूसरी बात ये है कि एवरीडे चेंज आता है, मार्केट में चेंज आता है, कस्टमर की नीड में चेंज आता है, तो आपको कस्टमर बेस इको फ्रेंडली और कस्टमर फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनानी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा, मैन पावर अच्छे लाने पड़ेंगे। ये सब चीज को मिला के जब अपने चीज को और मार्केट में अपनी प्रोडक्ट को जब करेंगे तो कोई आपको रोक नहीं सकता है। दूसरी बात है कि आप कौन से ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। देखो, मार्केट दो टाइप के होते हैं, एक तो प्राइस ड्रिवन मार्केट है, एक क्वालिटी ड्रिवन मार्केट है। जहां भी प्राइस ड्रिवन मार्केट है वहां आपको रिवर्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि लेकिन मेन चीज ये है कि एक मार्केट क्वांटिटी का मार्केट है और प्राइस ड्रिवन मार्केट है, और प्राइस ड्रिवन मार्केट में काफी कठिनाइयां होती है क्योंकि बहुत सारे लोगों के सामने प्राइस वॉर करनी पड़ती है। लेकिन एक दूसरा क्वालिटी की बातें आती है, और क्वालिटी कस्टमर्स वो लोग हैं कि जहां क्वालिटी मिलता है तो प्राइस उसके लिए कुछ नहीं। तो आपको एक स्ट्रेटेजी बनाना है कि आपको कौन से मार्केट को टारगेट करना है, और वो मार्केट को टारगेट करके उसके सामने जब काम करेंगे तो अपने को वो मार्केट मिल सकता है। दूसरी बात ये है कि जनरल बिजनेस जब शुरू करते हैं तो पहली तो फाइनेंस की प्रॉब्लम्स एवरीडे आपको आएगा, क्योंकि शॉर्ट फाइनेंस तो सबको रहता ही है। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है कि बैंकर के साथ अपने को एक रिलेशन बना के रखना पड़ेगा और सच्चा काम करना है आपको। बैंकर्स यदि आपको जान लिया कि पार्टी बहुत अच्छा है और सही काम कर रहा है तो एवरी टाइम वो आपको सपोर्ट करेगा। आज 2.5 लाख से शुरू करने वाला आज मेरा 20 करोड़ लिमिट है कोटक में, तो यहां तक जो मैं पहुंचा हूं तो मेरे को बड़ा करने वाले कौन है? बैंकर्स। बैंक वालों के साथ जब हमने रिलेशन ऐसे रखे और हम एवरी टाइम हम प्रोग्रेस की बातें करते थे, टेक्नोलॉजी लाते थे, तो वहां हम बैंकर्स का सपोर्ट लेते थे। और बैंकर ही एक ऐसी चीज है कि वो फाइनेंस में रिलेटिव जितना सपोर्ट नहीं करेगा उतना बैंकर्स करेगा। दूसरी बात ये है कि कस्टमर के साथ अपने को सही ढंग से पेश आना पड़ेगा, अपनी प्रोडक्ट जो है उसको डिलीवर करना पड़ेगा, उसने जितना पैसा आपको दिया है उतनी चीज आपको देनी पड़ेगी, और ट्रांसपेरेंसी रहेगी तो कस्टमर का फेथ आप में बढ़ता है। यदि कस्टमर का फेथ बढ़ गया तो आपकी प्रोडक्ट ऑटोमेटिक चलने वाली है। दूसरी चीज है कि ट्रांसपेरेंसी किसको बोलते हैं कि जो चीज आप कर सकते हैं वही करेंगे, और जो चीज आप नहीं कर सकते उसको साफ मना करेंगे। कई लोग क्या है कि हाँ भर लेते हैं और चीज जाती नहीं है, तो इसका फायदा है नहीं, नुकसान ही है, क्योंकि आपकी इमेज खराब होने वाली है। तो छोटी छोटी चीजें कहीं ऐसी होती है कि जो आपको रुकावट डाल सकती है। आप ऑर्डर लेने के लिए हाँ भर लिया, टाइम फ्रेम में काम करने की बात आई और आप नहीं कर पाते, वहां भी आप फॉल्स हो जाते हैं और उसके अंदर कस्टमर का फेथ को आप निकाल सकते हैं। दूसरी बात है कि गोल सेट करने की जो बात है, देखो कोई भी छोटा आदमी है या बड़ा आदमी है, एजुकेशन में ही आप देखो इतनी साल पढ़ के यहाँ तक आप पहुंचे हैं, तो आपने कोई गोल तो सेट किया था कि मेरे को इंजीनियर बनना है या ग्रेजुएशन करना है, जो भी करना है। तो आपने जो गोल सेट किया था और उसके पीछे आप लगे तो आप यहाँ तक पहुंच पाए हैं। तो बिजनेस है ना, उसमें यही चीज है कि आपको गोल सेट करना है कि ये बिजनेस करके मेरे को सक्सेस होना है, और आपने गोल फ्रेम किया है, उसके ऊपर स्ट्रिक्टली आप फॉलो करेंगे और उसको पकड़ के चलेंगे तो उसमें सक्सेस आपके हाथ में ही है, उसमें कोई रोक नहीं सकता है। मेन चीज क्या है कि पेट में भूख होना चाहिए। बिजनेस का भूख,
काम करने का भूख, हम लोग 86 में जितना काम कर रहे हैं और काम करने का जो भूख था, आज भी हमारे में उतना ही फायर है। आपके अंदर फायर पैदा नहीं होएगा तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, क्योंकि रूटीन काम करने वाले वो रूटीन काम करते हैं और वही लोग 10 साल के बाद भी वहीं दिखते हैं। लेकिन जिसको जिसको एस्टेब्लिश होना है उसको खुद में फायर लाना पड़ेगा, और खुद में जब फायर आएगी तो वो बंदे को कोई रोक नहीं पाता, और कोई ऐसी चीज नहीं है जो मतलब उसको रोके। दूसरी बात ये है कि हर चीज आसान है, आप कैसा सोचते हो ये थिंकिंग की बात है। पहले तो ये चीज है कि धंधा करना आसान है ऐसा अपने दिमाग में डाल देते हैं, तो ऐसा समझ लो कि हर कठिनाई में भी आपको रास्ता दिखेगा। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि सोचना शुरू कर देते, यार ये तो बहुत कठिन चीज है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो ये एक्चुअली दिमागी हालत है। अपने दिमाग को जब ठसा देंगे कि धंधा करना आसान है और हर मुश्किल में रास्ता मिल ही जाता है और हम काम कर सकते हैं, तो ये जो बिलीफ है वो बिलीफ आपको रास्ता दिखा सकती है। मेन चीज है कि 1000 डे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 1000 दिन में, कि पॉजिटिव एटीट्यूड, हर चीज में आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब सफल होना है, वो चीज को पकड़ के चलो। हर नेगेटिव चीज को आप पॉजिटिव देखना शुरू करेंगे तो रास्ता मिल जाता है। बिल्ड द रिलेशनशिप, ये चीज आई। वैसे आप जिस चीज आपने फिक्स किया है वो चीज को आपको पकड़ के चलना है, उसमें डाइवर्ट नहीं होना है। जैसे मैं मेरी बात करता हूँ कि जब मैंने स्टार्ट किया तो हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो किया कि मैं ऐसा ही चीज बनाऊंगा। उसके बाद उसकी प्राइसिंग फिक्स हुआ, और उसके बाद अब जब मार्केट में गए तो हमने फिक्स कर लिया था कि ऐसे लोगों को ही देंगे जिन लोगों को ये प्राइस जच रही है। तो आज ऐसा हालत है कि इंडिया का टॉप कॉर्पोरेट्स मेरे पास है, कोई गवर्नमेंट ऐसी नहीं है कि जहां मेरी प्रोडक्ट्स नहीं है। तो मेरी सक्सेस के पीछे यही राज है कि मैंने मेरी प्रोडक्ट में जान डाल दिया, क्वालिटी बनाया, कस्टमर फ्रेंडली बनाया। और कोई चीज ऐसी नहीं है कि सस्ते में बेचो, कस्टमर कभी ऐसा नहीं बोलता है सस्ते में बेचो, लेकिन कस्टमर ये बोलता है कि वाजिबी भाव में बेचो, मतलब कि जैसी क्वालिटी वैसा दाम। आज मेरी प्रोडक्ट इतना कॉस्टली लग रहा है, लेकिन किसको लग रहा है? जिन लोगों को सस्ता चाहिए। लेकिन मेरी प्रोडक्ट वो लोग ले रहे हैं कि जिन लोगों को अच्छी चीज चाहिए, और अच्छी चीज चाहिए, क्वालिटी चाहिए, तो उसका दाम होता ही है और वो एक्सेप्ट हो जाता है। दूसरी बात ये है कि विजुअलाइज योर ड्रीम। देखो, मैंने 86 में ड्रीम देखा था कि मैं कहाँ पहुंचने वाला हूँ, मेरी कंपनी कहाँ पहुंचेगी और मेरे पास क्या होना चाहिए। देखो, आदमी ड्रीम देखेगा तो ही उसको सोच आएगी और उसको काम करने का मन करेगा। तो एक ड्रीम देखना, वो भी एक चीज मैं आपको बोलता हूँ कि सपने साकार करने के लिए मेहनत करना पड़ता है, लेकिन सपने पहले तो सोचना ही तो पड़ता है कि भाई सपना क्या है मेरा, और मैं कैसा फ्यूचर में मैं कहाँ हूँगा, मेरी कंपनी कहाँ होगी। तो ये सब चीजें आपको देखनी है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है सेल्फ डिसिप्लिन। देखो दोस्तों, मैं ये कहना चाहूंगा कि आदमी भटक जाते हैं, धंधा करने निकलते हैं फिर भटक जाते हैं, लेकिन खुद की एक सेल्फ डिसिप्लिन होती है कि मैं टाइम से जाऊंगा, टाइम से आऊंगा, मैं ऐसा ही चीज बनाऊंगा जो मार्केट में हटके होता है। क्वालिटी प्रोडक्ट्स है या कुछ भी स्टैंडर्ड है, वो आपने एक बार फ्रीज कर दिया, आप जो रास्ते पे चलना चाहते हो उसको आपने फिक्स कर दिया, उसके बाद आपको हिलना नहीं है। मतलब डिसिप्लिन से काम करना है, और जो लोग आपको हर्डल कर रहा है उसको आपको साइड लाइन करना है, उसके सामने देखना नहीं है। हम लोग को भी ऐसे ही लोग आते थे कि भाई मार्केट में फ्लडेड है, ये चीज मिल रहा है, लेकिन हमने हमारा एक स्टैंडर्ड बना लिया था और हमारी जो बिलीफ थी उसको पकड़ के रखा कि भाई हम ऐसा ही करेंगे। और उसका एक एग्जांपल मैं देता हूं कि जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया उस टाइम पे एक्साइज भी था और सेल टैक्स भी था। आज फर्नीचर में 28% एक्साइज और वैट दोनों मिलके हम पे कर रहे थे, तो मेरी प्रोडक्ट कितनी महंगी हो जाती थी मार्केट में। लेकिन उस टाइम पे भी हमने कभी विदाउट बिल काम नहीं किया, आज भी हम काम नहीं कर रहे हैं।
तो उसका नतीजा क्या हुआ कि शुरू में लोग मांगते थे कि भाई हमें तो यार इतना टैक्स नहीं देना है, लेकिन हम लोग ने बोला कि भाई हमारा काम तो यही है। जब जाके जिसको लेना था वो लोग लेने आ गए। उस टाइम पे हमने कॉर्पोरेट को टारगेट किया, गवर्नमेंट को टारगेट किया, तो मार्केट तो हमारे को मिलने शुरू हो गया। और आज ये हालत है कि ऑन बुक्स हम लोग काम कर रहे हैं। ऑन बुक्स काम करने का भी एक फायदा है, आप बड़े हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये चीज बहुत सारी आपसे जो बात मैंने किया है वो चीज एक ही है कि सक्सेस होने में आपको कोई रोक नहीं सकता, आपको तय करना है। जैसे कि आपने लाइफ के अंदर जो काम करना शुरू किया, तो आपको जो डेस्टिनेशन पहुंचना है वो आप फिक्स किया है, वो पहुंचना है। तो ये मेरी जनरल बातें है। बाकी शॉर्ट में 2 मिनट मेरी कंपनी की बातें कर लेता हूँ कि 86 में जब स्टार्ट किया तो बहुत छोटा सा यूनिट था, टेक्नोलॉजी एडॉप्ट किया और ग्रेजुअली हमने जब स्टार्ट किया तो मेरा ख्वाहिश था कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से मेरी प्रोडक्ट बननी चाहिए। तो वो धीरे धीरे ग्रेजुअली करते करते आज 100 करोड़ क्रॉस कर लिया है हमने खाली फर्नीचर इंडस्ट्रीज में। अक्रॉस इंडिया मेरा 27 स्टोर है, मोर देन 350 डीलर्स है और कॉर्पोरेट्स और गवर्नमेंट के साथ हम लोग काम करते हैं। और अलग अलग जो सोफा डिवीजन, होम फर्नीचर, हॉस्पिटल फर्नीचर, ऐसा करके डिफरेंट सेक्शन में हमने फर्नीचर में काम किया है और हम लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये छोटी सी मेरी कहानी है कि कुछ भी नहीं था और एक स्कूटर लेके मैं घूम रहा था। आज मेरे पास सब कुछ है बिकॉज ऑफ दैट कि मैंने तय किया था और कितना भी दिक्कतें आई उसको सामना करके मैं एस्टेब्लिश हो गया और मेरी कंपनी को एस्टेब्लिश किया। थैंक यू। थैंक यू प्रवीण भाई, आपने बहुत अच्छे तरीके से पूरी MBA जॉब बीइंग ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बता दिया। 7 क्वालिटी के अंदर में फायर होना चाहिए, ड्रीम होना चाहिए, एथिक्स के साथ काम करो, कॉर्नर मत कट करो। और जिस तरीके से आपने पूरी ग्रासरूट लेवल से आकर एक एक्सपोर्ट क्वालिटी प्रोडक्ट बेस्ड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप बनाया, ये बहुत इंस्पायरिंग है। ऑलरेडी 600 से ज्यादा कमेंट्स में देख रहा हूँ फेसबुक में, तो लोगों को आपकी कहानी में काफी इंस्पिरेशंस मिला। और कहीं ना कहीं आप जैसे एंटरप्रेन्योर हमारे इनोवेटर्स की, एंटरप्रेन्योर्स की, जो आज की उद्यमी है, उनकी मनोबल बढ़ाते हैं। मैं क्वेश्चंस के साथ आपके पास आऊंगा, बट मैं अरुण जी को अनुरोध करता हूँ। अरुण जी, हम आपसे सुनना चाहेंगे। आपने 30-35 यंग एंटरप्रेन्योर को भी सपोर्ट किया है अभी तक, मैंने सुना। खुद तो अच्छे एंटरप्रेन्योर बने, दूसरों को भी बना रहे हो, क्या कहानी है आपका? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मित्रों, आज मैं आपके साथ नॉन कन्वेंशनल अप्रोच और इनोवेटिव मार्केटिंग के बारे में बात करूंगा। मार्केटिंग एक मेजर रिक्वायरमेंट स्टार्टअप की होती है। जितना स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग आपका रहेगा तो आप जल्दी आगे बढ़ेंगे और आप गोल भी जल्दी अचीव करेंगे। सर, मैं पहली बात करूंगा कि रीडिंग का इम्पोर्टेंट कितना है। आप आपके रूटीन काम में आप बहुत अच्छा काम करते हो। मैं पान इंडिया न्यूज़पेपर्स डेली पढ़ता हूँ सर। मैं बॉम्बे का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता हूँ, कलकत्ता का टेलीग्राफ पढ़ता हूँ, मद्रास का हिंदू पढ़ता हूँ और इकोनॉमिक टाइम्स है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस हैं। ये सब में से मैं बहुत सारा बिजनेस कर लेता हूँ। बिजनेस में करता हूँ न्यूज में से, कंपनी न्यूज में से। ये जितने भी फाइनेंशियल जो डेली हैं, इकोनॉमिक टाइम्स और फाइनेंशियल एक्सप्रेस में क्वार्टरली रिजल्ट आता है, तो उसमें से मैं सब पर्चियां काट के वो सबको, मेरे पास बैक ऑफिस में 3 लड़कियां हैं, वो कंटिन्यूस प्रमोशनल काम हम करते हैं। तो उस हिसाब से यही सब जो न्यूज़पेपर है उसमें टेंडर न्यूज में से मैं काफी करता हूँ। एम्प्लॉयमेंट एड में से कम 2-5 करोड़ का बिजनेस में करता हूँ सर। आज एम्प्लॉयमेंट कौन देता है कि जहां पर प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस जहां पर होता है तो वह उनका सोच भी उनकी प्रोग्रेसिव होती है। तो उस हिसाब से एक अंबुजा सीमेंट की एम्प्लॉयमेंट एड में से कोडिनार प्लांट का मैंने मेरा लोन मोवर के बारे में, कैंपस में मेंटेनेंस इक्विपमेंट के बारे में लिखा। और जो ऑर्डर अंबुजा सीमेंट का कोडिनार का आया
वो मैंने कोरोस्पोंडेंस करके अंबुजा सीमेंट के, मराठा सीमेंट और भी सब सीमेंट प्लांट थे, उनको तो मैंने भेजा। तो एक साल में टोटल अंबुजा सीमेंट मेरी कस्टमर हो गई। अंबुजा सीमेंट का ऑर्डर मैंने अल्ट्राटेक में भेजा, अल्ट्राटेक का एसीसी में भेजा, एसीसी का इंडिया सीमेंट, बॉन्डर सीमेंट। तो उस हिसाब से 3 साल में टोटल सीमेंट कंपनी मेरी कस्टमर हो गई। सेम इक्वेशन मैंने 5 स्टार होटल्स, रिसोर्ट्स वगैरह में गार्डन काफी अच्छे होते हैं, तो हमारे ओबेरॉय दिल्ली का ऑर्डर मैंने इंटरनेशनल पासपोर्ट की तरह यूज किया। तो टुडे ओबेरॉय का ऑर्डर देखते हुए मेरा ताज, लीला, ललित, क्लब महिंद्रा। तो उस हिसाब से आप नेटवर्किंग कीजिए, तो आप बैठे बैठे ही काफी कुछ आप बिजनेस आप वो कर सकते हैं। आइडेंटिकल कस्टमर्स आज अंबुजा को दिया, तो उस हिसाब से मैंने एंटायर सीमेंट इंडस्ट्रीज को दिया। इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में ऐसे में हुकअप करता हूँ। और दूसरी बात यह है कि आप लोकल मार्केट तो आप स्ट्रॉन्ग कीजिए ही, मगर लोकल मार्केट के साथ ट्रैवलिंग करके आप और भी मार्केट डेवलप कीजिए। आप गुजरात में काम करते हैं, तो साहब गुजरात का मार्केट थोड़ा डिफिकल्ट है, साउथ का मार्केट, नॉर्थ का मार्केट भी थोड़ा टिपिकल है, मगर ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट का मार्केट जो है ना, गुजरात की इतनी अच्छी इंप्रेशन है, तो उस हिसाब से आप आपकी गुजरात की ब्रांड इमेज वहां पर भी कैश कर सकते हैं। आज मैंने ट्रैवलिंग भी इतना विगरस किया है कि इंडिया के टोटल 29 स्टेट में पर्सनली विजिट किया है, और वर्ल्ड के करीब 30-40 कंट्रीज में घुमा हुआ हूँ। जो भी देश में मेरा मशीन पहला जाता है, जो एक्सपोर्ट होता है, 15 दिन के बाद में वो कंट्री में चला जाता हूँ, और हो सकता है कि वो अपनी प्रोडक्ट वहां की 9वें या 10वें नंबर की पार्टी ने ली हो, तो वहां पर जाके आगे 10 पार्टी का मैं कांटेक्ट कर लेता हूँ। तो उस हिसाब से ट्रैवलिंग करने से बहुत फर्क पड़ता है। आपकी प्रायोरिटी जो है ना, सिर्फ आप ऑफिस में बैठे रहने का, कंप्यूटर के सामने बैठने का, लैपटॉप पे करने का, नो डाउट डेवलपमेंट और ये सब जरूरी है, मगर जितना भी आप ट्रैवलिंग करेंगे उस हिसाब से आपको काफी अच्छा मिलेगा। और दूसरी सबसे अच्छी बात है, टेक एडवाइस। आपके जो क्लेवर फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, आपके नेबर्स हैं, आप उनसे एडवाइस लेने में जरा सा भी मत झिझकिए। मैंने मेरे इंडस्ट्रियल एरिया में आसपास में 10 मैंने बड़े भाई रखे हैं, एक हाइड्रोलिक का, एक न्यूमेटिक का, एक हीट ट्रीटमेंट का, एक प्लास्टिक का, एक केमिकल का। तो जब भी कोई भी मुझे कुछ प्रॉब्लम होता है, तो मैं दिमाग लगाता ही नहीं हूँ, वहां पर जाके उनकी चाय पी आता हूँ, और जो मैंने पहले जो 2-2, 3-3 महीने निकाले होते हैं, वो मुझे एडवाइस देते हैं, 2 मिनट में मुझे उनका सॉल्यूशन मिल जाता है। तो उस हिसाब से आप एडवाइस लेने में जरा सा भी मत झिझकिए। आप ये मत समझिए कि वो मेरे से छोटा है तो मैं उनको क्यों पूछूं, या बहुत बड़ा है तो वो मुझे एडवाइस देगा या नहीं देगा। ये माइंडसेट में से आप बाहर आ जाइए। और जैसे मैंने बताया कि एग्जीबिशन के लिए आप जरूर घूमिए। आप अहमदाबाद में हो, गुजरात में हो, तो वो तो आप एग्जीबिशन विजिट कीजिए ही कीजिए, मगर बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, वहां के सब एग्जीबिशन भी देखिए। और आपकी सिटीज में भी एग्जीबिशन आपकी ही लाइन के हैं, वो विजिट करना ऐसा नहीं है। आप हर एक लाइन का, केमिकल का, फार्मास्यूटिकल का, आज कोई भी एग्जीबिशन में स्टॉल लगाने वाली कंपनी का एक स्टैंडिंग रहता है। आज 8-10 लाख खर्च के वहां पर आई हैं, तो वो इंडस्ट्रीज, वो कंपनी को आप टारगेट करेंगे, तो उस हिसाब से आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और दूसरी बात है, अहमदाबाद में तो अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन हो गया, या ईडीआई हो गया, ऐसी ऐसी संस्था में आप रेगुलर, आप महीने 2 महीने एक बार जाइए। ये में तो ऐसा मंदिर है, तो वहां पर तो इतनी अच्छे प्रोग्राम्स और इतने वो सब होते हैं। तो कीप योर आईज एंड माइंड ओपन। तो उस हिसाब से आप काफी अच्छी आप प्रोग्रेस कर सकते हैं। और आप समझ लीजिए कि दूसरी भी कई ऐसी ऐसी चीजें हैं कि आपको माइंड और वो ओपन रखने का। और अंजू जी और प्रोफेसर हिमांशु भाई, अने मोहंता जी, मैं आपको भी थोड़ा एक सजेशन करना चाहता हूँ कि यूजुअली स्टार्टअप के लिए जितनी भी कॉलेज के एलुमनी होते हैं ना, वो काफी ओपन माइंडेड होते हैं। जैसे कि मोरबी का इंजीनियरिंग कॉलेज का लैंको हो गया, तो ये सब एलुमनी को भी अपन स्टार्टअप के लिए उनकी हेल्प लेंगे ना, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। और एजुकेशन इंस्टीट्यूट तो हर एक उनकी एलुमनी काफी होती है। दूसरा मैं सजेस्ट करता हूँ कि अभी हमने पाटीदार ग्लोबल समिट में हमने एक पूरा स्टार्टअप के लिए एक डोम रखा हुआ था। तो उस हिसाब से आप जो अहमदाबाद की या इंडिया की जो एग्जीबिशन कंपनियां हैं, A&D कम्युनिकेशन हो गया, रेडिकल हो गया, आकार हो गया, प्रवेग हो गया,
वो सबके साथ अपन टाई अप करके वो जो भी एग्जीबिशन करेंगे उसके अंदर एक अपन स्टार्टअप का एक दो स्टॉल रख सकते हैं, तो उससे भी अपना नेटवर्किंग बहुत बढ़ेगा। दूसरे स्टार्टअप के लिए सपोर्ट के लिए आप जितने भी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है, वटवा हो गया, राजकोट का तो कितना, राजकोट इंजीनियरिंग एसोसिएशन देखेंगे तो कितना जबरदस्त उनका नेटवर्क है। तो ऐसे ऐसे इंजीनियरिंग एसोसिएशन का भी अपन हेल्प लेंगे तो भी काफी अपन स्टूडेंट्स को और सबको अपन हेल्पफुल हो सकते हैं। दूसरा, मैंने कई बार, मेरा फॉरेन ट्रैवल काफी होता है, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए में, वहां की टीवी चैनल पे एक तरफ से स्टार्टअप होते हैं, दूसरी तरफ इन्वेस्टर और इंडस्ट्रीज होती हैं। तो ऐसा अपनी जो लोकल चैनल्स हैं उसके लिए भी अपन टाई अप कर सकते हैं। अंजू मैडम के जो जो कॉन्टेक्ट्स है वो सब यूटिलाइज करेंगे और अपन स्टार्टअप के लिए मेहनत करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू अरुण भाई। प्रवीण भाई ने हमें ऑपरेशनल मंत्रा दी, आपने मार्केटिंग की मंत्र दी। यस सर। भरत भाई जो हैं कीच आर्किटेक्चर की, वो स्ट्रैटेजी के आदमी है। ही इज अ मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट इन टर्म्स ऑफ मैन्यूवरिंग कंपनीज और एंटरप्राइजेस फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। सो भरत भाई, हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे, आपने इतना इनोवेटिव एंटरप्राइज बनाया है एंड आपकी स्ट्रैटेजी काफी यूनिक है, तो आप थोड़े से अपने व्यू पॉइंट रखिए कि किस तरीके से आपने अपनी जर्नी में, जैसे अरुण भाई ने मार्केटिंग की इनोवेशंस की, प्रवीण जी ने ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशंस की बातें करी, आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे आपकी जर्नी में स्टार्टअप्स क्या सीख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अंजू मैडम, हिमांशु जी और मानता जी, आप सबको मेरी ओर से प्रणाम और थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी। देखिए, प्लेटफॉर्म जो ये बना है और अब हमारा सबका जो एक उद्देश्य है, जो स्टार्टअप कर रहे हैं उन सबको सपोर्ट करना, तो यहाँ पे आई जस्ट ट्राई टू शेयर माई जर्नी। उसी के अंदर से कुछ चीजें जो है वो अपने आप निकल के आएगी, और जो आपने भी जो बताया और हिमांशु जी ने भी बताया, जिसको लेना है, जिसको हंगर है, वो कहीं ना कहीं से उसको वहां से मिल ही जाता है सोर्सेस। देखिए, हमने ये जर्नी की शुरुआत की थी 92 में। 92 में जब हमने शुरुआत की, दिस वाज 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट बनाने का कोई एक्चुअल में देखा जाए तो कोई पहले से तात्पर्य नहीं था। हाँ, जरूर ये था कि ये प्रोडक्ट जब हमने बनाई, जो प्रोडक्ट ये डिसाइड किया था कि हमें ये स्टेनलेस स्टील में से, क्योंकि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के अंदर इंडिया में जो हम लोग देख रहे थे, तो यहाँ पे ज्यादातर चीजें जो है वो एल्यूमिनियम, ब्रास या लोहे से बनी हुई चीजें यूज हो रही थी। और हम लोग ये देख रहे थे कि स्टेनलेस स्टील बीइंग ए मटेरियल, इसकी लाइफ बहुत ज्यादा है और इसके अंदर जो है वो आपको मेंटेनेंस या उसके पीछे जो है वो बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ती। सो स्ट्रेटेजिकली वी हैव डिसाइडेड कि प्रोडक्ट रेंज हम लोग को जो डेवलप करनी है, चाहे जो भी हम लोग बनाएंगे, वो स्टेनलेस स्टील में से बनाएंगे, ताकि एक बार बनाने में दिक्कत हो, शायद बेचने में भी एक बार दिक्कत हो, लेकिन जिसने भी यूज किया है, जिसने भी लिया है, उसको बरसों तक जो है वो कोई भी उसके अंदर उसको कोई दिक्कत ना हो, उसको मेंटेनेंस वगैरह की कोई कभी भी टाइम उसका यूटिलाइज करने की जरूरत ना पड़े। सो इस वजह से हम लोगों ने ये प्रोडक्ट कुछ सिलेक्ट करे, जैसे मार्बल फिक्सिंग क्लैंप हो गए, सेल्फ के ब्रैकेट से, ये सब चीजें हमने शुरुआत की, 2-3 प्रोडक्ट से शुरुआत की थी हमने। प्रोडक्ट तो डेवलप कर लिया, लेकिन देखा यहाँ कि इंडिया के अंदर स्टेनलेस स्टील की अवेयरनेस ही नहीं थी अभी। 92 के करीब अगर देखा जाए तो स्टेनलेस स्टील के वेसल्स, स्टेनलेस स्टील के ज्यादा से ज्यादा गार्डन चेयर वगैरह आती थी। इसके अलावा बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल्स में बहुत स्टेनलेस स्टील का यूज हो रहा था, लेकिन एज ए हाउस होल्ड या हम लोग रूटीन कोर्स में अगर देखा जाए तो इतना कोई ज्यादा स्टेनलेस स्टील प्रचलित नहीं था वो टाइम पे। सो हमने ये देखा कि नहीं, प्रोडक्ट में तो हमें कॉम्प्रोमाइज करना नहीं है, जहां पे ये चीज चलेगी हम लोग मार्केट से ढूंढेंगे, और जहां ये प्रोडक्ट का हम लोग प्लेसमेंट कर पाए वहां पे हम लोग प्लेस करेंगे। देन वी स्ट्रेटेजिकली वी हैव डिसाइडेड कि ये प्रोडक्ट को जो है वो ग्लोबल मार्केट के अंदर, खास करके मिडिल ईस्ट जो हमसे काफी नजदीक है, और वहां पे ये प्रोडक्ट का काफी अच्छा जो है वो कंजम्पशन हो रहा है। सो हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमें डोमेस्टिक मार्केट के अंदर अभी हम लोगों को पैर ही नहीं रखना है, हम स्ट्रेट अवे विल गो इन अ मिडिल ईस्ट और वहां से ही हमारी जो बिजनेस की शुरुआत करेंगे। सो दिस वाज उस तरह से अगर देखा जाए तो ये 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट के हिसाब से शुरू हो गया, और पहला प्रोडक्ट हमारा जो भी बना हमारे यूनिट के अंदर, वो दुबई मार्केट के अंदर से ही हमने हमारे मार्केट की शुरुआत की, और वहां से धीरे धीरे मिडिल ईस्ट के अंदर दूसरे कंट्रीज में ये प्रोडक्ट को स्प्रेड करते गए। उसके बाद फिर अफ्रीकन मार्केट में हम लोग एंटर हुए, और वहां से जब मिडिल ईस्ट के अंदर ये मार्केट में प्रोडक्ट जब चल रहे थे, तब
साथ साथ में हम लोग ये देख रहे थे कि ग्लोबल मार्केट का ट्रेंड किस तरह से मूव हो रहा है, इंडियन मार्केट जो है वो उसमें कहाँ पे मूव हो रहा है, विच इज द राइट टाइम टू एंटर इनटू डोमेस्टिक मार्केट। ये हम लोग कॉन्स्टेंटली जो है वो क्लोजली वॉच करते जाते रहे। कुछ चीजें हमें नजर आई 97-98 के अंदर। यहाँ पे इंडिया के अंदर आईटी का जो है वो बहुत अच्छा डेवलपमेंट वो समय पे शुरू हो चुका था। अगर साउथ में हम लोग देखें, बेंगलोर, कोयम्बतूर, चेन्नई, ये सब जगह पे काफी आईटी के जो ग्लोबल लीडर्स है वो एंटर हो चुके थे। पूना वगैरह मार्केट में भी ये लोग आ रहे थे। सो वो टाइम पे आईटी सेक्टर्स के रिलेटेड जो भी आर्किटेक्चर बनता है, जैसे कोई भी होटल्स बनता है तो उसके लिए कोई, या हॉस्पिटल बनते हैं तो उनके लिए आर्किटेक्ट्स जो होते हैं वो स्पेशलाइज होती है, थोड़ी सी उसकी स्पेशलाइजेशन होती है। जो कंपेयर जो रेसिडेंट्स बनाते हैं वो आर्किटेक्ट शायद इतना अच्छा होटल या इतना अच्छा हॉस्पिटल जो है वो पूरी जानकारी के बगैर इतना अच्छा डेवलप नहीं कर पाते उस चीज को। तो उसी तरह से आईटी हमारे इंडिया के लिए जो है वो इतना ज्यादा पहचान उसकी नहीं बनी थी यहाँ पे। तो यहाँ पे जो भी आईटी के सेक्टर के लोग आ रहे थे बाहर से, उन लोगों ने बाहर से आर्किटेक्ट को इनवाइट किया। जैसे मिडिल ईस्ट से कुछ आर्किटेक्ट यहाँ पे आके आर्किटेक्चर कर रहे थे या प्रोजेक्ट्स जो वो डिजाइन कर रहे थे, कुछ यूके या यूएस से आके कुछ आर्किटेक्ट जो बिल्डिंग डिजाइन कर रहे थे। सो हम लोगों ने ट्रेंड को थोड़ा सा समझा और स्ट्रेटेजिकली ये देखा कि अभी मिडिल ईस्ट के जो आर्किटेक्ट वो इंडिया के अंदर अपना कुछ आर्किटेक्चर, कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह कर रहे थे। तो हम लोगों ने वहां पे उन लोगों को अप्रोच करना शुरू किया। शारजाह, दुबई वगैरह के जो आर्किटेक्ट है उन लोगों ने इंडिया में, जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल शेयर करूं, यहाँ के माइको हाउस जो है बेंगलोर के अंदर, वहाँ उनके आर्किटेक्ट थे फिलिप चाको करके, शारजाह से एक आर्किटेक्ट थे। उन लोगों ने वहां पे अपना हमारा प्रोडक्ट वो लोग रेगुलर यूज कर रहे थे शारजाह में। जब इंडिया के अंदर उन लोगों को ये प्रोडक्ट की ये यहाँ पे रिक्वायरमेंट हुई तो उनको तो रूट एक ही था, शारजाह पे उसका रिक्वायरमेंट भेजी, शारजाह से हमारा दुबई ऑफिस के अंदर वो रिक्वायरमेंट आई और मटेरियल यहाँ पे इंडिया सप्लाई हो चुका है। प्रोडक्ट हम लोग इंडिया में ही बना रहे थे। यहाँ से हमारा मटेरियल जो दुबई ऑफिस जाता था, वहां से शारजाह जाता था और शारजाह से वापस वो मटेरियल होके इंडिया में आके वो प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे यूज हो रहा था। सो दैट वाज द ट्रेंड, इट बीन स्टार्टेड इन समवॉट 97-98। तो हम लोगों ने ये देखा कि अभी इंडिया के अंदर जो है वो ट्रेंड शुरू धीरे धीरे हो चुका है और इस टाइप के प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है। तो सीधा हम लोगों ने ये प्रोडक्ट को डोमेस्टिक मार्केट, इंडियन मार्केट के अंदर भी लाने के लिए पूरा एक प्रोजेक्ट बनाया, पूरा प्लान बनाया। उसके लिए टीम जो है उसको हम लोगों ने रिक्रूट किया, डिफाइन किया कि किस तरह से ये प्रोडक्ट को इंडिया के अंदर एंटर कर सकते हैं। सो एक आर्किटेक्चर गेट टुगेदर हम लोगों ने करके ये प्रोडक्ट को इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च किया। लेकिन लॉन्च करने के बाद टू बी वेरी ऑनेस्ट विद द क्राउड, हम लोग फेल हुए यहाँ पे, क्योंकि जो आर्किटेक्ट तो कुछ वहां पे 70-80 आर्किटेक्ट्स आए हुए थे, लेकिन इसके अलावा ये प्रोडक्ट का प्लेसमेंट हमें करना था, वो मार्केट के अंदर करना था। जिन जिन ट्रेडरों को जाके हम लोगों ने प्रोडक्ट को ये दिखाया, इवन मैं खुद भी जो है प्रोडक्ट अवेयरनेस के कैंपेन के लिए जाता था, ट्रेडर को दिखाता था, प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी लगती थी लोगों को। लेकिन जब बात करते थे उनके साथ कि ये प्रोडक्ट है, इसका ये प्राइस है, उसके अंदर ये टैक्सेस लगते हैं, तो टैक्सेस का बात सुन के जैसे प्रवीण भाई ने बताया, यहाँ पे जो है ना लोगों के कान खड़े हो जाते थे कि हार्डवेयर प्रोडक्ट के अंदर, मतलब जो कंज्यूमर रेसिडेंस या ऑफिस के अंदर प्रोडक्ट लगता है उसके अंदर टैक्स थोड़ा होता है, उसके में बिल ही नहीं होता है। मतलब देन वी रियलाइज कि यहाँ पे कुछ ट्रेंड अलग ही है, हम लोगों को शायद ट्रेडर्स के थ्रू हम लोग नहीं एंटर हो पाएंगे। करीब 10-11 महीने की मेहनत के बाद हम लोगों ने हमारी स्ट्रेटेजी को कम्प्लीटली चेंज किया और इन्फ्लुएंस ग्रुप्स को हम लोगों ने सिलेक्ट किया। इन्फ्लुएंसर ग्रुप जो है उनके थ्रू हम लोग रूट हुए। तो आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर्स जो है इंडियन मार्केट के अंदर, इंडिया के अंदर, उनको हम लोगों ने अप्रोच करना शुरू किया। उन लोगों को जाके हमारे प्रोडक्ट्स, हमारी क्वालिटी, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हम लोग फॉलो कर रहे हैं, जिसकी वजह से जर्मन, इटालियन या अमेरिकन प्रोडक्ट जो इंडियन मार्केट के अंदर अभी है यहाँ पे, उसके सामने वो टाइम पे हम लोग कॉम्पीट कर रहे थे मिडिल ईस्ट के अंदर। सो मिडिल ईस्ट मार्केट के अंदर अगर हमें एंटर होना है तो वहां पे ये यूरोपियन या अमेरिकन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके ही प्रोडक्ट बना के वहां पे सप्लाई करना पड़ता था। तो यही प्रोडक्ट हम लोगों ने वहां पे वो टाइम पे टेक्नोलॉजी, जो स्ट्रेटेजी है वो उसी तरह से हमने लिया था कि टेक्नोलॉजी को रेगुलरली अपग्रेड करते जाए, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसको हम लोग फॉलो करें और उस स्टैंडर्ड से प्रोडक्ट जो बने हुए थे वो डोमेस्टिक मार्केट में यहाँ पे अवेयरनेस के कैंपेन शुरू किए आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनर या इन्फ्लुएंसर जो ग्रुप है वहां पे, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को। तो धीरे धीरे जो है वो आर्किटेक्ट इंटीरियर ने जब ये प्रोडक्ट्स को एक्सेप्ट करना शुरू किया, सो उन लोगों ने जो है वो अपने प्रोडक्ट को स्पेसिफिकेशन में डालना शुरू किया अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर
और वो प्रोजेक्ट में जब स्पेसिफिकेशन में आया तब उसकी रिक्वायरमेंट जो है मार्केट के अंदर पहुंची। जब मार्केट में वो रिक्वायरमेंट पहुंची तब जो डीलर्स है, जो ट्रेडर्स है, वो लोग सामने से आने हमारे पास शुरू हुए कि ये प्रोडक्ट जो हमें चाहिए, आप हमें आपकी डीलरशिप दीजिए, हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूशनशिप दीजिए। तो ये चीजों को लेके जो है वो हम लोगों ने धीरे धीरे मार्केट के अंदर ये प्रोडक्ट को एंटर किया। कॉर्पोरेट्स में हम लोग एंटर हुए। आज करीब 1400 से ज्यादा कॉर्पोरेट ग्रुप्स के हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सीपीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी, ये से काफी एनबीसीसी, ये सब जगह पे हमारे प्रोडक्ट जो यूज हो रहे हैं। आप ये बड़ौदा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखिए, बॉम्बे एयरपोर्ट है, अभी देहरादून एयरपोर्ट का काम जो हमारा चल रहा है, प्रगति मैदान दिल्ली का जो वर्क चल रहा है कंप्लीटली उसका रेलिंग हार्डवेयर सारा हम ही कर रहे हैं। महात्मा मंदिर जो अपना यहाँ पे बना हुआ है गांधीनगर के अंदर, तो ये सारे नेशनल और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने काफी करके ये प्रोडक्ट को यहाँ पे एस्टेब्लिश किया है। अगर हम लोग बात करें चैलेंजेस की, तो चैलेंजेस तो हर दिन आती है, और उस चैलेंजेस को समझ के हमारी आज की स्ट्रेटेजी क्या है और आने वाला समय क्या है, उस दोनों के बीच में जो है उसको ब्रिज बना के क्या हमारी राइट स्ट्रेटेजी हो सकती है, जिसकी वजह से जो है वो हम लोग आने वाले समय के अंदर, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली तो देखा जाए तो कस्टमर जो है वही किंग रहने वाला है। कस्टमर को आप कस्टमर के चहीते बन के उसके बाजू में रह सकते हैं, उतना आपकी सक्सेस जो है ना वो कहीं ना कहीं पे आप मॉनिटर कर सकते हो उस चीज से। सो हमेशा हमें ये चीज में ध्यान रखना होगा कि रखना चाहिए कि आज के कस्टमर की क्या नीड है, और आने वाला जो समय है उसमें उस कस्टमर को उसकी नीड में क्या चेंजेस हो सकता है। तो एडवांस स्टेप में ही हम लोग उसको प्रिपरेशन करके रखे, जब सोच वहां पे पहुंचे तब तक जो है वो हम लोगों ने प्रोडक्ट को या तो मार्केट में इंट्रोड्यूस किया है, या फिर थोड़ी हंगर अगर क्रिएट करनी है तो जैसे ही मार्केट के अंदर लोगों की डिमांड आनी शुरू हो, इमीडिएटली वो जो डेवलप किया हुआ प्रोडक्ट है आप मार्केट के अंदर रख देते हैं, तो वो समय पे जो है वो सक्सेस आपको जो है वो आपके इर्द गिर्द नहीं गुजरती, सक्सेस आपके पीछे पीछे ही चलती रहती है हमेशा। वो इंतजार करते हैं कि आप कैसे ये 2 स्टेप आगे बढ़े, ताकि मैं आपके पीछे पीछे आपके स्टेप्स जो है उसको फॉलो करके आपके पास रहूं। सो देर आर सर्टन थिंग्स व्हाट वी फॉलो। और कुछ चीज हम लोग बिलीव करते हैं कि देखिए अगर आपको कल्चरल होना है, अगर आपको एथिकली काम करना है, तो मार्केट के अंदर जो है वो आपको चैलेंजेस कहीं पे भी आने के चांसेस नहीं होते, या होते हैं तो वो टेम्पररी चैलेंजेस होते हैं, टेम्पररी फेसेस होते हैं। अगर आप एथिकल वे में काम कर रहे हैं, अगर आप कल्चर्ड वे, अगर आप अपना जो कुछ जो जिसको बोलते हैं कि कुछ ऐसी जो स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए आपके पास, कुछ ऐसे पॉलिसीज होनी चाहिए जिसकी वजह से लोगों को आपको छोड़ने के समय भी दर्द हो, अगर किसी भी वजह से, जैसे अगर आप वो मैच नहीं कर पाते। अभी काफी हमारे ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर ऐसी चीजें आती है कि प्राइस की वजह से अगर समझो कोई कस्टमर हमारा प्रोडक्ट यूज ना कर सके, तो वो टाइम पे उनको प्रोडक्ट ना यूज करने का दुख होता है उनको, कि देखिए आज हम लोगों को ये इस कुछ वजह से, कुछ हमारे यहाँ पे जो हमने डिसाइड की हुई है पॉलिसी, उसकी वजह से ये प्रोडक्ट यूज नहीं करे, लेकिन हमारी चाह है कि हमें ये प्रोडक्ट को खींच के प्रोडक्ट को हमें एक दिन यूज करने हैं। तो वो जो है वो तभी हम लोग बना पाते हैं जब हम खुद कुछ एथिकल वे में आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेटेजिकल वे में अगर हम लोग बात करें तो हर कॉन्टिनेंटल की अलग अलग स्ट्रेटेजिक्स होती है, काम करने के तरीके कुछ अलग होते हैं। अगर हम लोग इंडिया के अंदर काम कर ले तो ये हो सकता है कि शायद हम लोगों को 28, 29 या 30 कॉन्टिनेंट्स के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं, उतनी स्ट्रेटेजीज हम लोगों को यहाँ पे मिल सकती है, क्योंकि हर स्टेट की अपने काम करने के तरीके अलग है, हर स्टेट के कस्टमर्स जो है उसकी खुद की बिलीव्स अलग है, हर स्टेट के कस्टमर्स कंज्यूमर्स है उसकी नीड अलग है। अगर हर एक स्टेट के लिए अगर हम लोग अपनी स्ट्रेटेजीज जो है वो एक बार बना लेते हैं, तो मुझे लगता है कि इंडिया से जब लोग बाहर निकलते हैं तब पूरे वर्ल्ड को जो हम लोग अपने ही कहीं ना कहीं पे जो स्ट्रेटेजी हमने डिफाइन की अपने कंट्री को कवर करने के लिए, उसी में से कोई ना कोई स्ट्रेटेजी जो है कोई ना कोई एक कॉन्टिनेंट को जो है वो अच्छी तरह से सेटिस्फाई कर सकती है। सो इस तरह से देखिए आज हम लोग इंडिया के अंदर जो 2 प्रोडक्ट से हमने शुरुआत की थी, 2 मेन पावर से शुरुआत की थी, आज 650 से ज्यादा ये किच परिवार के मेंबर्स हैं और 5,500 से ज्यादा हमारे प्रोडक्ट्स है। 30 के करीब कंट्रीज के अंदर हम लोग डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मर्चेंट एक्सपोर्ट के थ्रू अगर काउंट करें तो 55-56 कंट्रीज के अंदर हम लोग के प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है वो ग्रेजुअल है। देखिए सक्सेस जो है वो कोई मंत्रा नहीं है कि उसको बोल लिया या उसको
लेने से, किसी के पास से वो मंत्र आ जाने से हम लोग सक्सेस हो जाते हैं. But yes, it is, we can say it's like a result of preparation, hard work and learning from failures. Failures रोज आते हैं लाइफ के अंदर, उसमें से कुछ ना कुछ हम लोग सीखेंगे, कुछ ना कुछ लेंगे और अपने प्रिपरेशन करते जाएंगे, हार्ड वर्क को नहीं छोड़ेंगे, तो सक्सेस होने में हमें जो है ना कोई भी रोक नहीं पाता है. So this was I can say from my side. चैलेंजेस तो है, चैलेंजेस रहेगी, लेकिन उसमें से अपॉर्चुनिटी क्या हम लोग ढूंढ सकते हैं वो देखना चाहिए. अगर ये आज की पेंडेमिक सिचुएशन की भी हम लोग बात करें तो मैं तो ये बोलूंगा कि ये जो है ना शायद पूरा ग्लोब जो है वो दूसरे डायरेक्शन के अंदर मूव हो रहा है. एक समय था जब मुनीम लोग जो है वो घर पे बैठ के या फिर हमारे शॉप पे आके पेन से लिख के हमारे अकाउंट्स लिखा करते थे. जब आईटी सॉल्यूशन आया उसके बाद जो है वो शायद जो 10 दिन का काम था वो 1 मिनट के अंदर या 2 मिनट के अंदर हो रहा है, ईआरपी वगैरह जो टेक्नोलॉजी की वजह से. तो आज देखिए अपने यहाँ पे अगर देखा जाए तो टाटा या अंबानी ऐसे ग्रुप है जो एक दिन के अंदर 10-10 मीटिंगें किया करते थे पहले, क्योंकि उनके पास जो है वो खुद के व्हीकल्स, खुद के वो लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सारे सेटअप्स थे, तो उसको एक ही दिन के अंदर 3 कंट्री में भी जाके मीटिंग करनी थी तो वो कर पाते थे. मुझे ग्लोब ने आज जो है, मुझे कुदरत ने ऐसा एक सिनारियो खड़ा करके कर दिया है, आज के डेट के अंदर एक दिन में मैं 6-6, 7-7, 8-8 कंट्रीज में मेरी मीटिंगें कर रहा हूँ घर पे बैठे बैठे. कहीं पे मुझे ट्रैवल नहीं करना है. मेरे एक्सपेंसेस जो है वो शायद जब मैं एक कंट्रीज के अंदर 3 सिटी में एक दिन में मैंने एक दिन में हाईएस्ट 4 सिटी के अंदर मेरी मीटिंगें की हुई है, राजकोट, बॉम्बे, दिल्ली, चंडीगढ़ और लुधियाना. अभी ये आप सोचिए कि इसके अंदर ट्रैवलिंग के एक्सपेंस और कितनी एनर्जी हमारी ड्रेन होती थी. शायद उससे 1 या 2% कॉस्ट के अंदर मैं 10-10 कंट्री के अंदर आज जो मीटिंग कर पा रहा हूँ. तो इसको हम लोग पेंडेमिक बोले या इसको रिवोल्यूशनरी टाइम बोले, इट इज अप टू अस. इसको अपॉर्चुनिटी हम लोग बोले, इसको अपॉर्चुनिटी मान ले, या इसको जो है वो हमारे लिए जो ये वो बोले कि ये फियर फैक्टर है, ये इसको माने. तो देखिए हर चीज के अंदर अगर ढूंढे तो अपॉर्चुनिटी मिल जाती है. जिस तरह से अरुण जी ने बताया कि आपको कहीं पे भी अगर एक छोटी सी अगर एंट्री मिल जाती है, एक पैर रखने की जगह मिल जाती है, आप कोशिश करके वहां पे पहुंच जाओ. पहुंच के फिर जो वहां के लोगों को, वहां के सिनेरियो को समझ के अगर उस मार्केट को अच्छे से ट्रैप करते हैं तो डेफिनेटली अगर हम लोग वहां पे टॉप पे पहुंच सकते हैं किसी भी कंट्रीज के अंदर. दिस वाज फ्रॉम माय साइड. थैंक यू वेरी मच. वंडरफुल भरत भाई. आई विल क्विकली क्यूरेट सम क्वेश्चंस. अरुण जी, आपके लिए एक सवाल है स्टार्टअप की तरफ से. आपने जो इनोवेटिव मार्केटिंग की बात कही, ये सवाल सूरत के एक स्टार्टअप से है. वो कह रहे हैं फेसबुक लाइव में, जब शुरुआती दिनों में साधन कम होता है तो क्या इनोवेशन करें, मार्केटिंग बजट को कम करें लेकिन फिर भी मार्केटिंग कर पाए? हाँ, बहुत वैसे तो मैंने आपको बताया कि आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी जगह पे रीडिंग से भी आप निकाल सकते हैं. आपके कौन सी एरिया में आप काम कर रहे हैं, जो एरिया में आप काम करते हैं, उनके ट्रेड मैगजीन में आप एडवर्टाइजमेंट देंगे, या जो आप काम करते हैं वो प्रोडक्ट के हिसाब से आप समझ लीजिए कि मैं सीमेंट में काम करता हूँ तो मैं सीमेंट इंडस्ट्रीज के साथ टच में रहता हूँ. मैं सेफ्टी में काम करता हूँ तो सेफ्टी में आंखन कान खुला रखता हूँ. शुगर में मैं करता हूँ. तो आप कौन से एरिया में काम करना चाहते हैं वो आप उनको कंसोलिडेट करें, उनको टैप अप करें और कम्युनिकेशन आप रखें. भरत भाई ने बिल्कुल सही बताया कि आप आपके डीलर के साथ, आपके कस्टमर के साथ आप कंटिन्यूस टच में रहेंगे. आप और हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो हर एक कस्टमर है उनके कॉम्पिटिटर से डरता है. तो मैं तो हमेशा माने ताज का ऑर्डर ओबेरॉय को देता हूँ और ओबेरॉय का ऑर्डर लीला ललित को देता हूँ, तो वो जल्दी अपनी बात समझते हैं. तो उस हिसाब से आप प्रमोशनल काम किया कीजिए. देखो प्रमोशनल बहुत अच्छी चीज है. आप जितना आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आप ध्यान रखते हैं, इतना ही बल्कि उनसे भी ज्यादा आप मार्केटिंग में दीजिए. देखो आपको वंडरफुल रिजल्ट मिलेंगे. वंडरफुल. प्रवीण जी, आपके लिए एक सवाल है. डॉक्टर मोनिका सूरी पूछ रहे हैं सूरत से, औरो यूनिवर्सिटी से. वो कह रहे हैं कि आज की पैंडेमिक की दुनिया में बीइंग लोकल बट ग्लोबल की काफी बात हो रही है, और आपने तो बहुत पहले से ही लोकली एंटरप्राइज बना के ग्लोबल मार्केट में क्वालिटी प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं. तो आज की जनरेशन में जो यंग स्टार्टअप्स हैं, उनको लोकल प्रॉब्लम सॉल्व करके भी ग्लोबल मार्केट कैप्चर करने के लिए क्या सलाह है आपका? देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि ग्लोबल मार्केट
मतलब कि आप जो प्रोडक्ट बनाते हैं ना, तो वो इंटरनेशनल मार्केट में कौन लीडर है, और वो प्रोडक्ट जो लीडर जो बना रहा है उसके की पॉइंट्स क्या है, उसको आप पकड़ लो और उसको फॉलो करके अपने अपने इंडियन मार्केट में जब जाएंगे तो जगह बन सकता है। जैसे मैं मेरी बात करता हूं तो रिवॉल्विंग चेयर्स हैं या सोफा की बात करें, तो मेरी हर प्रोडक्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो करके मैंने काम किया, और जितनी भी इंटरनेशनल कंपनियां हैं वो क्या कर रही है उस चीज को मैंने जब पकड़ा और की पॉइंट्स पकड़ के मैंने मेरे मार्केट में डाला। आज के दिन में फैब्रिक सोफा में 5 ईयर वारंटी देने वाला कोई नहीं है इंडिया में, जबकि मैंने इंटरनेशनल कंपनी का स्टडी किया तो उसने 5 ईयर वारंटी देने के लिए उस लेवल की प्रोडक्ट बनाई। तो उस लेवल की प्रोडक्ट बना के 5 ईयर, ये मेरे की पॉइंट्स थे। तो आज के दिन में इंडिया में ये मतलब इतना अवेयरनेस आ गया है, इतना एजुकेशन है, और अपना जो ऑडियंस है वो इतना वर्ल्ड के साथ जुड़ा हुआ है। तो ऐसा समझो कि इंटरनेशनल प्रोडक्ट को अपने इंडिया में चलाना चाहिए और उसको जल्दी से वो एडप्ट हो जाएगा, कोई इतना भारी बात नहीं है। वंडरफुल। और इंटरनेशनल मार्केट के बारे में मैं एक सूचन करना चाहता हूं कि आप इंटरनेशनल एग्जीबिशन देखिए। आप दुबई में, सिंगापुर में, हांगकांग में, वहां के एग्जीबिशंस कंपैरेटिवली चीप होते हैं, और एक बार मैच्योरिटी और आपका फाइनेंस परमिट करता है तो आप जर्मन्स और अमेरिकन्स और इटालियन एग्जीबिशंस देखिए। पहले एज ए विजिटर देखिए, आपके कॉम्पिटिटर का स्टॉल कहाँ पर है, दूर खड़े हो जाइए आपके कैटलॉग वगैरह लेके, और वहां पर जो उनके बायर्स एक बार माने बात करके दूर जाते हैं, आप उनको टाई अप कीजिए। तो और बाद में भरत भाई या प्रवीण भाई की पोजीशन में पहुंचते हैं तो फिर आप स्टॉल लगाइए। तो एग्जीबिशन से क्या आपका डेटाबेस बहुत अच्छा वो हो जाता है, और वो आप फ्यूचर में कभी भी यूज कर सकते हैं। थैंक यू सर। वंडरफुल। भरत भाई, एक सवाल एक स्टार्टअप का आपके लिए। वो जी। कह रहे हैं कि मैंने गुजरात में स्टूडेंट स्टार्टअप इनोवेशन पॉलिसी के माध्यम से प्रोडक्ट बना लिया है, यहाँ मेरा बेचना भी चालू हो गया है, रेवेन्यू भी 2 करोड़ के आसपास हो गई है। अब मैं ग्लोबल मार्केट में सेल्स करना चाहता हूँ, तो ग्लोबल सेल्स के लिए स्टार्टअप्स की अर्ली सलाह क्या होगा आपका? देखिए सिंपल है। पहले तो ये है कि जो प्रोडक्ट हमारा है किस सेगमेंट को फॉलो कर रहा है, उस सेगमेंट में कौन से कंट्रीज में मुझे एंटर होना है, वहाँ की ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या है, किस तरह से वहाँ पे बिजनेस हो रहा है, दूसरे जो मैन्युफैक्चर या दूसरे ब्रांड्स वहाँ पे एस्टेब्लिश है उसके और मेरे प्रोडक्ट के अंदर यूनिक फीचर्स क्या है, उसके यूनिक फीचर्स क्या है और मेरे यूनिक फीचर्स क्या है। कुछ चीजें स्टडी करके उस मार्केट पर्टिकुलरली अगर उस कंट्रीज में, जिस कंट्रीज में हमें लगता है कि पहले तो हमारा जो वो राइट सिलेक्शन होना चाहिए कि मेरा कंज्यूमर्स कौन है, मेरा कस्टमर कौन है, और उसको ध्यान में रख के राइट कंट्रीज जिसमें मुझे जो अभी आज की मेरी पोजीशन होगी अगर स्टार्टअप है तो ऑब्वियस चीज है थोड़े से जो है वो फाइनेंशियल कंडीशन जो है इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो सकती, अपनी शुरुआत है तो हमें भी थोड़ा सा क्राइसिस वगैरह में से पास होना होता है। तो मार्केट को वहां के जिस मार्केट में हमें एंटर होना है उसमें मैं लिमिटेड बजट के साथ या मिनिमम बजट के साथ किस मार्केट में मैं एंटर हो सकता हूँ उसको एक बार स्टडी करके उस मार्केट में मेरा जो राइट ऑडियंस जो है कौन, ये मेरे प्रोडक्ट का बायर कौन है, उसको अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ, और सोशल मीडिया जो है वो बहुत अच्छा हम लोगों को काम में आ सकता है। अगर उस टारगेट ऑडियंस को सोशल मीडिया के माध्यम से अप्रोच करना शुरू करें तो बहुत बेर मिनिमम अमाउंट से हम लोग उन अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। एक बार हमारे यूनिक फीचर्स अगर हम लोग उसको समझा पाते हैं, अगर वहां के कंट्रीज जो है उसके जो स्टैंडर्ड नॉर्म्स जो फॉलो करने होते हैं वो नॉर्म्स को स्टडी करके हम लोग रेडी बैठे हैं, तो वहां पे जो भी कस्टमर के पास हम लोग पहुंचेंगे उनको जो है वो उस कंट्रीज की जो भी नीड है, अगर वो उसके टेक्निकल स्टैंडर्ड्स जो है वो पैरामीटर्स में हम लोग कहीं ना कहीं पे जो हम लोग मैच कर पा रहे हैं, और जो कुछ यूएसपीज हमारे जो वहां पे प्रोडक्ट अवेलेबल है उसके सामने कुछ यूएसपीज हमारे अच्छे हैं, ये हम लोग उसको सोशल मीडिया थ्रू या वीसी थ्रू या किसी भी तरह से अगर हम लोग उसको बता देते हैं तो कंज्यूमर जो वो सामने से आपको अप्रोच करना शुरू करेगा। और मेरे हिसाब से ये राइट टाइम है, कोई भी आपको कभी मिलने के लिए बुलाएगा नहीं ये समय के अंदर, आपका पैसा भी कहीं पे वो जाने वाला नहीं है, आपके पास समय है। अगर सोशल मीडिया थ्रू आप एक बार लोगों तक पहुंच जाओ
और उसको अगर वीडियो कॉन्फ्रेंस थ्रू जो है वो इनवाइट कर लो और उनके थ्रू फेस टू फेस मीटिंग हो जाती है, प्रोडक्ट को भी अच्छे से दिखा भी सकते हैं, उसको टेक्नोलॉजी पे भी अच्छे से समझा पाते हैं। इतना करने से मुझे लगता है कि अच्छे से जो है वो आप कोई भी मार्केट के अंदर एंटर हो सकते हो। ओनली थिंग इज प्रोडक्ट जो अपना है उसके कंपैरिजन में राइट ऑडियंस और राइट कंट्रीज को सिलेक्ट करके अगर हम लोग एंटर होते हैं तो रास्ते जो है वो इजी हो जाते हैं शुरू में। फिर तो अपने लिए जो है वो ग्लोबल जो है वो कोई बाउंड्री लेस ग्लोबल बन जाता है फिर तो मुझे लगता है। स्टार्टअप के लिए मेरा एक इंटरनेशनल मार्केट के लिए मेरा एक सूचन है कि आप आपके जो इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर हैं उनकी वेबसाइट आप जितने भी हैं वो सब की आप वेबसाइट रेगुलर आप सर्फ कीजिए। उसके अंदर उनके फॉरेन की कंपनीज तो उनके डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के नाम, एड्रेस, ईमेल सब कुछ देते हैं और उस हिसाब से उनका कीजिए, उनके एंड यूजर्स कौन सी इंडस्ट्रीज है, कैसी कैसी हैं, तो वैसी इंडस्ट्रीज आप गूगल में से ढूंढ के आप प्रमोशनल काम करेंगे। एक्सपोर्ट के लिए आपका डेली समझ लीजिए 15, 20, 25 मिनट का सेल्फ सर्फिंग बहुत जरूरी है। आपका इन्वॉल्वमेंट यदि पूरा रहेगा, क्योंकि आप ही आपकी प्रोडक्ट को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, आगे समझा सकते हैं, तो उस हिसाब से आप सर्फिंग किया करेंगे गूगल में से और इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर की वेबसाइट से, तो आपको काफी हेल्प भी मिलेगी और काफी अच्छी इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। वंडरफुल। इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम ये मैं एक सवाल लूंगा प्रवीण जी। एक इंटरेस्टिंग सवाल है, एक स्टार्टअप पूछ रहे हैं कि आपने 86 से आज तक इतना बड़ा एम्पायर बनाया, कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप भी बनाए होंगे, एक्विजिशंस भी किए होंगे, तो ये कैसा रहता है अपने बिजनेस जर्नी में एक स्टार्टअप के लिए? किस तरीके से हम स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बनाए सो दैट हम ग्रो कर पाए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन मेरे जो बिजनेस में आज तक मैंने किसी को पार्टनर नहीं बनाया है, क्योंकि मैं खुद मेहनत करता हूं और मैं खुद खाना चाहता हूं। तो मैंने क्या किया कि ब्रेन को हायर किया है। मेरे प्रोग्रेस में मैं ब्रेन को हायर करता हूं, क्योंकि मैं ओनली बीकॉम एलएलबी, मैं इतना कोई टेक्नोलॉजी और टेक्निकली पर्सन तो हूं नहीं। लेकिन जब मैंने काम स्टार्ट किया तो जो लोग टेक्निकल मतलब आगे है, एक्सपर्टाइज है, उन लोगों को जोड़ के साथ में लेके मेरी जर्नी स्टार्ट किया। तो आप यकीन नहीं करेंगे, आज के दिन में मेरा स्ट्रेटेजी का जो डायरेक्टर है, वोडाफोन इंडिया हेड जो था, 19 साल वोडाफोन के साथ रहा, नेशनल हेड, वो 6 साल से मेरे साथ काम कर रहा है। मैं जब छोटा था और जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो उस टाइम पे भी हम लोग, हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, यस यस आवाज आ रही है? यस सर। हाँ हाँ, यस। जब छोटा बिजनेस था तब भी हम लोग जो एक्सपर्ट लोग थे वैसे लोगों को ही हम जोड़ते थे और उन लोगों से सीख के हमारी प्रोडक्ट को इम्प्रूव करते थे। तो जर्नी में सबसे ज्यादा जो सपोर्ट मेरे को फाइनेंशियली जो मिला है तो बैंकर से है। और पार्टनर की कब जरूरत पड़ती है कि आप फाइनेंशियली पार्टनर लेना चाहते हो या टेक्नोलॉजी वाला। हाँ, एक बात है कि अभी एक लेवल पे हम लोग जर्मनी या इटली से हम कोलैबोरेशन करना चाहेंगे या एफडीआई होएगा हमारे पास, लेकिन उस टाइम ऐसा माहौल में खड़ा करूंगा कि मेरा वैल्यूएशन मैं जो मांगूंगा वो देना चाहिए, क्योंकि आपने इतनी साल मेहनत किया है और वो मेहनत के फ्रूट्स अपने को मिलना चाहिए, क्योंकि अपने बने बनाए के साथ वो पार्टनर अपने साथ आ रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि ग्रोथ होने के लिए सपोर्ट की जरूरत है, तो हो सके तो आप बैंकर से सपोर्ट लीजिए। इससे जितना ग्रोथ हो रहा है उसके बाद यदि आपको मार्केट में जाना है तो मार्केट में से भी आप इक्विटी ले सकते हैं या किसी से इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं, जेवी पार्टनर है या फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। लेकिन इतना जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि अपनी वैल्यूएशन ऐसी लेके खड़ी करो कि आपको 10 टाइम्स पैसा मिले। जैसे कि हैवमोर आइसक्रीम है, हैवमोर आइसक्रीम इतना लेवल पे ले गया उसकी ब्रांड को, उसके बाद 900 करोड़ में किसी को स्टैकअप किया तो पूरा बिजनेस उसको थमाया है। तो मेरा यही कहना है कि वेट एंड वॉच और अपनी कैपेबिलिटी इतनी बनानी चाहिए, उसके बाद ऐसे डिसीजंस लेने चाहिए कि कैसे अपने जेवी करे या वेंचर करे।
बहुत प्रवीण ने वोडाफोन के कंसल्टेंट की बहुत अच्छी बात की। स्टार्टअप में एक माइंड ब्लॉक रहता है कि हमें आता है, हमको पता है, मगर आप छोटे मोटे कंसल्टेंट रखिए और उनके साथ प्रॉफिट शेयरिंग कीजिए। मैं मेरा ही यदि एक्सपीरियंस करूं तो 3 साल पहले मैंने अमेजोन और ई कॉम कंपनी के लिए मैंने एक कंसल्टेंट रखा था, यंग बॉयज को। तब साल का हमारा 3 लाख का अमेजोन पे सेल था और लास्ट समझ लीजिए कि मंथ में इतनी मंदी के बावजूद अमेजोन में हमारा 1 करोड़ रुपए का सेल है। थैंक्स टू मैंने उनको 15,000 में कंसल्टेंसी दी थी और 1% ऑन माय सेल। तो उस हिसाब से आप प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आप जल्दी से आगे आ पाएंगे। एक पॉइंट Thank में you. इसमें मानता जी अलाउ करे तो एक पॉइंट में इसमें ऐड करना please, चाहूंगा जी। अच्छा, एक दो चीजें में जो हमने खुद एक्सपीरियंस किए हुए हैं। फाइनेंस तो एज प्रवीण भाई और अरुण भाई राइटली सेड, बैंक और कहीं से भी आपको फाइनेंस जो है वो अच्छे से मिल जाते हैं। आपको गुडविल अपनी बनानी होती है और कुछ एक अपने ऑर्गेनाइजेशन को कल्चरल बनाना होता है तो फाइनेंस मिल जाता है। नाउ विल टॉक अबाउट स्ट्रेटेजिकल पार्टनर्स एंड ऑल, और या फिर जो टेक्नोलॉजिकल पार्टनर्स के लिए तो हमने एक रास्ता चुना था कि हमें किसी और की पार्टनरिंग नहीं चाहिए थी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो टाइम पे। बट हमने ये सोचा था कि ग्लोबल मार्केट में हम लोगों को एंटर होना है। यूरोप और अमेरिकन मार्केट को जब मिडिल ईस्ट में से मूव कर रहे थे तब देखा कि वहां के मार्केट में एंटर होने के लिए हम लोगों को और टेक्नोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। तो उसके लिए टेक्नोलॉजिकल या तो पार्टनरिंग करें या फिर कोई और रास्ता निकाले। तो वी कम आउट विद अ डिफरेंट वे। जो भी ग्लोबल लीडर्स थे उनको हमने अप्रोच करना शुरू किया कि आपके जो प्रोडक्ट्स है, उसके प्रोडक्ट को स्टडी किया और अप्रोच करना शुरू किया कि आपके जो प्रोडक्ट है वो हम आपको बना के डेवलप करके दे सकते हैं। सो उसमें से कुछ कंपनियों को जो 100, 125, 150 साल पुरानी जो कंपनियां हैं उसको हम लोगों ने एज ए ओई प्रोडक्ट जो है सप्लाई करना शुरू किया। जब प्रोडक्ट ओई एज ए ओई शुरुआत की हम लोगों ने उसको सप्लाई करने, तो उनके साथ फिजिकल मीटिंगें शुरू हुई। जब मीटिंगें शुरू हुई कुछ टाइम के बाद उन लोगों को भी हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ। तो साथ साथ में जो है वो प्रोडक्ट भी उन लोगों ने हम लोगों को नए डेवलप करने के लिए दिए और साथ साथ टेक्नोलॉजिकल भी हम लोगों को गाइडेंस दिया कि आपको इस तरह से ये प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए ये टेक्नोलॉजी का आप यूज करते हैं तो इसमें आपको एडवांटेज मिलेगा, परफेक्शन ज्यादा आएगा, कॉस्ट आपकी जो है वो कम आएगी। तो उन लोगों को वही सप्लाई, हम लोग बिजनेस भी कर रहे थे, उसको सप्लाई भी कर रहे थे और इनडायरेक्ट वे में जो उनके पास से काफी कुछ सीख भी रहे थे। सो उसी से कुछ सीख के कुछ हम लोग यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन कर रहे थे और वापस उसी को उसमें से बना के उसको सप्लाई कर रहे थे, उसमें से कुछ वापस अर्न भी कर रहे थे। तो ये साइकिल जो इस तरह से कंटिन्यूअसली चल रहा है और आज भी जो है आफ्टर 8 इयर्स वो साइकिल उसी तरह से चल रहा है, उतनी स्पीड में चल रहा है। कहीं ना कहीं पे हम लोग हर साल एक दो जगह पे वही आज हमारी ब्रांड जो है, हम लोग 57 कंट्रीज के अंदर ये ब्रांड को हम लोग एस्टेब्लिश कर पाए हैं। तब भी हम लोग वही बिजनेस को छोड़े नहीं है। दिस इज नॉट फॉर अर्निंग, दिस इज समथिंग टू गेन फ्रॉम द लीडर्स जो वर्ल्ड के अंदर बैठे हुए हैं, जो टेक्नोलॉजिकली हमसे काफी आगे है। उससे कुछ सीखने के लिए हम लोग उसको वही सप्लाई कर रहे हैं। कोस्ट टू कोस्ट में भी हमें सप्लाई करना पड़े तो हम लोग कर रहे हैं उसको, क्योंकि हमारा वहां पे एस्पेक्ट जो है वो अर्निंग का है ही नहीं, वहां से लर्निंग का ही हमारा जो है वो एस्पेक्ट है। सो दिस व्हाट आल्सो वी कैन डू इट। बरदे में एक दूसरा अप्रोच मेरा है कि मैं कभी जर्मन एग्जीबिशन या इटालियन एग्जीबिशन में जाता हूँ तो वहां से प्रोटोटाइप ले आता हूँ और ट्राई करता हूँ कि उनका डिट्टो कॉपी करके अपन उनको अपने मार्केट में इंट्रोड्यूस करें। और नहीं होता है तो फिर हम उनका एक एजेंसी लेके इंडिया में सेल करें, एक वॉल्यूम तक पहुंचे और बाद में वो सब करे। तो ऐसे नॉन कन्वेंशनल आप अप्रोच रखेंगे तो दो प्रोडक्ट डाउन द लेवल, दो प्रोडक्ट अप द लेवल, तो आपके पास क्या है कि प्रोडक्ट का बास्केट बन जाएगा और आपके लिए भी एक एडिशनल बिजनेस मिल जाएगा। वंडरफुल सर, आप सबसे इतना कुछ सीखने को मिल रहा है। 150 से ज्यादा सवाल आ गए हैं इस बीच में, मैं सब पूरे सवाल नहीं ले सकता, लेकिन हाँ इतना जरूर करूंगा कि ये सवाल का एक कटोरा बना के मैं आप सबको मेल करूंगा और आपकी सलाह लेके एक ब्लॉग बनाएंगे ताकि जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं आपसे सीख पाए। और फिर से एक बार दोबारा जो है हम लोग कुछ स्टार्टअप्स को आपके साथ डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे मेंटरशिप के लिए। ये अंजू मैडम का भी एडवाइस था कि आप जैसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स को अभी की बर्डिंग एंटरप्रेन्योर के साथ एक बार जो है ना महीने में चाय का
मीटिंग कराएं, तो कम से कम तो सीखने को मिलेगा। और क्या पता वो आप में से कोई और निकले 10 साल बाद उन्हीं में से। सो ये एक प्रयास है स्टार्टअप एनगेज प्रोग्राम का, आई हब का। तो मैं अभी अनुरोध करूंगा अंजू मैडम जी को, चेयरपर्सन आई हब एंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन, कि मैडम हम लोग आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने इनपुट्स और व्यूज शेयर करिए। It was a beautiful discussion. आप लोगों ने तीनों एंटरप्रेन्योर्स ने अपने अपने एक्सपीरियंसेस बताए कि किस तरीके से आप लोग स्ट्रगल करके और छोटी छोटी चीज़ों में आगे बढ़ के और अपना आप लोगों ने बिजनेस सेटअप किया। अब चाहे वो स्कूटर पे ले जाना हो, चाहे वो छोटी छोटी डीलर से बात करना हो, चाहे वो क्रॉस सेक्टरल लिंकेजेस को आपको एस्टैब्लिश करना हो, पूरी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी जो होती है वो एक इट्स नॉट अ स्मॉल जर्नी। एंड आज आप लोगों को यहाँ लाने का जो हेतु था वो यही था कि जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो हमारे स्टार्टअप्स हैं, आज जो ये कदम कदम पे स्ट्रगल्स को फेस करते हैं और सोचते हैं कि हमारा आगे कैसे हम आगे बढ़ पाएंगे और छोटी छोटी चीजों में वो उनको लगता है कि हम कैसे बड़ा देख पाएंगे। तो एक ऐसा एग्जाम्पल सेटअप करना कि नहीं ये हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो सकता, चीजें हो सकती हैं, करने की इच्छा हो तो हर कुछ चीज हो सकती है, बस सिर्फ हमें अपना एक डिटर्मिनेशन वो रखना पड़ेगा। और जो भी प्रॉब्लम हमारे सामने आएगी हमें उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो एक इस टाइप की डिटर्मिनेशन से हम आगे चले, नथिंग दैट कैन नॉट लाई, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। उसके लिए एक आपको परसिवरेंस के साथ, डेडिकेशन के साथ, कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। तो आप लोगों के आज जो तीनों के एग्जाम्पल्स थे उससे हमारे जो नए स्टार्टअप्स हैं इनको काफी जानने को मिलेगा और किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को आगे बढ़ा के और ब्रांड बना सकते हैं, एक नेशनल ब्रांड, इंटरनेशनल ब्रांड, और किस तरीके से एक छोटी सी चीज को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारे एंटरप्रेन्योर्स को मिला और आई एम श्योर सारे एंटरप्रेन्योर्स को बहुत इसमें फायदा हुआ होगा। मैं पर्सनली प्रवीण भाई का, अरुण भाई का और भरत भाई का धन्यवाद देती हूँ कि आज आप वो लोग आए और उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस हमारे एंटरप्रेन्योर्स के साथ, यंग एंटरप्रेन्योर्स के साथ शेयर किए। मैं ये भी सजेस्ट करूंगी कि आप लोग उनमें से कुछ लोगों को मेंटरिंग भी कर सकते हैं, हेल्प भी कर सकते हैं, जिससे वो लोग आगे बढ़े। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। Thank you so much, madam. You rightly mentioned Arun bhai already has offered he will mentor some of the startups, and I will be keeping in touch with others also. So, sir, thank you for joining us today. आज आपकी इस एक्सपीरियंस से 2000 से ज्यादा इनोवेटर्स को काफी नॉलेज मिला। हम फिर से आपके पास वापस आएंगे इनकी क्वेरीज को लेकर, एंड सर्टेनली आप सबकी डिकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस, तीनों की 60 साल की कलेक्टिव एक्सपीरियंस जो है वो हमारे इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को काम आएगा। और इस अपेक्षा के साथ हम आपको फिर से साधुवाद देते हैं ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर इनोवेशन एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम इन गुजरात। नमस्ते प्रवीण भाई, नमस्ते भरत भाई, नमस्ते अरुण। थैंक यू सो मच। Namaste. Thank you very much for inviting us, and it will be our pleasure to be connected with iHub. Thank you very much. Thank you, sir.